احمد کا نام اور وہ سارا کچھ پوچھا ہے. ہاں دیکھیں نا وہ ڈینائی کرے بالکل, وہ پڑھے ہی نہیں کبھی اس نے, یہ کیا بیچاری کیا کرے. انوسنٹ جواب دیا کہ نہیں صاف انہوں نے لکھا ہے اس کے مصداق مسیح موعود ہی ہیں, یعنی وہ کوئی اور ہے ہی نہیں ہے. دیکھیں اس میں ان کا بھی تھوڑا سا ہے کہ کم و بیش, میں جہاں تک ان کی آواز سے لگ رہا تھا, کم و بیش 40 سے 50 کی ایج کی ہوں گی وہ. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنے عرصے تک اگر ایک بندہ ایک چیز سوچتا ہو, اس کو ایک چیز بتائی گئی اور وہی وہ اپنے عقیدے کے طور پر لے کے چلتا آ رہا ہو, اور ایک دم سے آپ لوگ اس کے سامنے یہ چیز رکھ دیں, وہی کیسے مانے گا وہ؟ اس کے لیے اس کو وقت دینا چاہیے, اور اس لیے اس کو دیکھیں نا, میں ساحل کالم صاحب, میں آپ کو صحیح بات بتاؤں, جب تک کوئی مرزائی کسی مخالف سے بات نہیں نہ کرے گا, اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں کہاں کھڑا ہوا ہوں. تو اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو 3 پوائنٹ تھے نا, ایک تو احمد والی بات, اور ایک محمد والی, اور ایک کلمہ, یہ 3 چیزیں باجی کو کہتے ہیں کہ باجی آپ کو سامنے ہم نے 3 چیزیں رکھی ہیں, آپ کوشش کریں کہ خود جا کے پڑھیں یا جماعتی مربیان سے اس کے بارے میں پوچھیں. پھر اگر آپ کو لگے گا کہ یہاں پہ لوگوں نے آپ کو غلط چیز بتائی ہے, تو پھر آ کر یہاں کہیں گے آپ لوگوں نے, لیکن جب تک آپ خود دیکھیں گے نہیں, پڑھیں گے نہیں, صرف کسی کے کہہ دینے کے اوپر غلط ہے, اس طرح تھوڑی نہ ہوتا ہے. لیکن باجی یہ بات سننا نہیں سننا چاہتی, کیونکہ باجی نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جو بھی آپ دکھا رہی ہیں سارا آپ نے خود ہی چھاپا ہوا ہے, جھوٹ ہے, سارا جھوٹ ہے. تو پھر ظاہر اس کو کیا وہ چیک کریں گے جب انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ طارق چوہان صاحب, یہ نا ایک نئی جماعت کے اندر چیز آئی, انہوں نے نہیں صرف بولی, پچھلے دنوں بھی میری بات ہو رہی تھی, تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں آپ لوگوں نے خود ایڈ کی ہیں اندر, یہ بھی جماعت نے ایک نیا سسٹم ایڈ کرنے کی کوشش اب کر دی ہے. اچھا, میں خود سنتا رہا ہوں بہت دفعہ, ہمیں فیس بک پہ بھی اور نئے جب ہم ٹک ٹاک پہ آئے تھے, بہت سارے لوگ کہتے تھے مفتی مبشر اپنا روحانی خزانہ جڑا انہوں نے یہ ایک نئی اسٹریٹجی آ گئی ہے, کیونکہ اب اس کا جواب تو نہیں دے سکتے. اب یہ کہ یہ ہماری کتابیں ہے ہی نہیں, بس کہہ دیو تسی آپ ہی بنا کے کر دے رہے ہو. اور جیسے وہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو 47 کا جو الفضل, وہ کہتے ہیں ساحل کالو اس نے گھر سے بنایا ہے, یہ ہمارے پاس تو آئی نہیں وہاں پہ. تو جب یہ یہاں پہ آدمی آ جائے تو اس کا آپ دلیل سے کیا بات کریں گے؟ آپ ایک اندازہ کریں نا, آپ ایک اندازہ یہ کریں کہ مرزا طاہر نے, اب یہ جتنی بھی لاٹ ہے چوہان صاحب, یہ مرزا طاہر کی ٹریڈ کی ہوئی ہے. ہاں بالکل, خلیفہ رحیم اللہ, خلیفہ رابع, یہ خلیفہ رابع علی لاٹ ہے ساری. اب اس بندے نے مولوی کہہ کے ان کو اس قدر یقین دلوا دیا, جیسے اللہ پہ ان کو یقین ہے نا, اس طرح ان کو یقین ہے کہ مولوی سچ بول ہی نہیں سکتا. اور دوسرے کہ مولوی کے پاس بے شمار طاقتیں ہیں, وہ سارا دن بیٹھ کے وہ روحانی خزانہ چھاپتے رہتے مرزائیوں کو دھوکہ دینے کے لیے. نہیں, یہ سبق ہے, اس طرح کی گفتگو جو ہے یہ عام مسلمانوں کے لیے بھی سبق ہے کہ ایک حد سے زیادہ ہمیں تجاوز نہیں کرنا چاہیے, ورنہ جن لوگوں کو ہم بلا رہے ہیں یہ اور پکے ہوتے جائیں گے, کیونکہ ان کے تو منشن ہی ہے, ان کی تعلیم ہی ہے کہ دیکھو جی ہم اس لیے سچے ہیں کیونکہ وہ دیکھو ہم سے کیا ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, ہمیں اذان نہیں دینے دے رہے, ہمارے ساتھ صحابہ والا سلوک ہو رہا ہے, مطلب ان کو تو یہی منشن بیچا گیا. بھی اصل بات تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کی اپنے اکابر کہہ رہے ہیں کہ تمہارا ان لوگوں کا اسلام الگ ہے, ہمارا اسلام الگ ہے, تو پھر تم ان کا اسلام کیوں پریکٹس کرتے ہو مرزائیو؟ پھر تم اپنا والا کرو پریکٹس. تو یہی وجہ ہے کہ پھر آپ کو نہیں اجازت دی جاتی شاعر اسلام استعمال کرنے کی. لیکن آفر اپنے آپ کو وکٹم سمجھنا یہ تو بہت کامیاب اسٹریٹجی نہیں ہے کہ جی ہم مظلوم ہیں وہ ظالم ہیں, تو پھر ظاہر ہے کہ جو مظلوم ہے اس میں پھر سختی آ جاتی ہے کہ جو بھی بات میرے سامنے پیش کی جائے گی اس کو میں نے ماننا ہی نہیں. اور یار تسی چوہان صاحب اب آگے کیوں جاتے ہیں؟ مجھے بتائے آج تک پاکستان کے اندر کتنے سندھ کے ایسے لوگ ہیں جو بھٹو کو صرف اس بات پہ سپورٹ کر رہے ہیں وکٹم کارڈ کے اوپر, بالکل نہیں چھوڑیں گے اس کو. ہماری ذہنیت ہی یہ ہے, نہیں چھوڑنا جی, ہم لائل ہیں, کیوں بھٹو نے قربانی دی ہمارے لیے, تو بس ان کے ذہن میں بٹھا دیا کیا, بھٹو نے اپنا خون پیش کیا ہے جمہوریت کے لیے. بالکل, شہیدوں کی امین پارٹی, وہ کہتے ہیں نا شہیدوں کی امین پارٹی, تو وہ انہوں نے پاگل کر چھڑے ہیں. بالکل, تو یہی اسٹریٹجی وہ بھی استعمال کر رہے ہیں جماعت احمدیہ والے کہ بس ہم مظلوم ہیں, یہ ظالم ہے, تو ظالموں کی تو ہم نے کوئی بات سنی نہیں نا پھر.
जो मर्जी कहते रहे। हाँ भाई की कॉल उठाए जरा नीचे से। बहरहाल आपकी हिम्मत है कि आपने इतनी देर खातून लजना को बर्दाश्त किया, जिस तरह की वो बातें कर रही थी वो, क्योंकि नहीं, वो जो बेचारी, शख्स मैं दलील से तो बात ना कर रहा हो उससे हाँ, क्या आदमी करे बुरा बात। भला भी कहती तो माइंड क्या करना है उन पे, तो मतलब अल्लाह रहम करे, बेचारे मासूम है। मैं तो यकीन करे ना इन पे तरस आता है कि यार क्या पूरे इनका कसूर भी नहीं होना, बड़ों ने सर पे लाद दी है और वो बेचारे पक गए। अफ्रीका में अब एक नया मसीह मौद आ गया है, उसने दावा किया है कि मैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम की सेकंड कमिंग हूँ और मुझे कश्ती बनाने का हुक्म दिया गया है, मुझे पैसे दें। तो 25 दिसंबर 2025 को एक आलमी तूफान आना है जिसमें सारी दुनिया ने बह जाना है, वो लोग बचेंगे जो मेरी कश्ती में सवार होंगे। हाँ जी, लोगों ने वाह उसको पैसे दिए। अब 25 दिसंबर जब गुजर गई तो हाँ 26 के 27 दिसंबर को वहां किसी शहर में एक बहुत बड़ा कंसर्ट हुआ किसी गुलूकार का। वो उस कंसर्ट में जा घुस गया और स्टेज पे चढ़ गया हाँ और कहता है खुदा ने मेरी दुआ सुन ली है और दुनिया को बचा लिया है, खुदा ने एक और मौका दिया है। और मेरी जो कश्ती बनाने का मुझे हुक्म था, लोगों ने ताबन नहीं किया, कश्ती उतनी बड़ी नहीं बन सकी। तो बेगुनाह लोग भी उसमें जो है वो तूफान की जद में आ सकते थे, इसलिए अल्लाह ने मोहलत दे दी है। हुण होर पैसे दिओ वड्डी कश्ती बनानी। हाँ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹੁਣ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਮਰਜ਼ਈ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਇੰਨਾ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਟਾਲ ਦੇ ਇਸ ਅਜ਼ਾਬ ਨੂੰ ਹਜੇ ਹੋਰ ਮੋਹਲਤ ਦੇ। ਹਾਲੇ ਕਸ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਅੱਛਾ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 3 ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਰਾਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ। ਉਸਤਾਦ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। वर्ल्ड वार 3 कटी सामान 2 महीने का सामान अपने घर च रखो तो जमाते अंदर स्टॉल लग रहा है कि सामान बिल्कुल। जब हम भी ना मिर्जा मसरूर सिर्फ मिर्जा मसरूर ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਹੋਣੀ ਉਹ ਤੀਜੀ ਹੋਣੀ है। वैसे ਉਹਦੀ है। जब हम भी मिर्जा मसरूर के पैरोकार थे ना तो हमें भी जमात के लोग आके पूछते थे आपने राशन इकट्ठा कर लिया? मैंने कहा हाँ हमने राशन इकट्ठा कर लिया और दुकान पे रखवाया हुआ हमने इकट्ठा करके घर नहीं लेके। अच्छा फिर तबसरा लगाए एआई का क्या कहता है? जरूर शेर खुदा भाई प्लीज चलाएं। अच्छा, तो आज हम एक ऐसे मौजू पर बात कर रहे हैं जो अक्सर काफी गर्मा गर्म बहस का बाइस बनता है। जी हाँ, ये एक मजहबी मुबाहिसा है जो अहमदिया जमात के कुछ बुनियादी अकायद के गिर्द घूमता है। हमारे पास इस बहस के जराए मौजूद हैं और आज हम इसमें से सबसे अहम नुकात और दलाइल को निकालकर सामने रखने की कोशिश करेंगे। और ये मुबाहिसा वाकई पेचीदा है, यानी इसमें इख्तिलाफ सिर्फ तफसीलात पर नहीं है बल्कि सबूत के मयार पर भी है। आज की जो गुफ्तगू है वो 2 बड़े मैदानों पर लड़ी गई है। अच्छा, पहला मैदान है बुरूज का तसव्वुर, यानी क्या कोई फौतशुदा शख्सियत रूहानी तौर पर दुनिया में वापस आ सकती है। और दूसरा मैदान है मुस्तकबिल के बारे में एक मशहूर हदीस और कुरान की एक आयत की तशरीह का। तो आज हमारा मकसद किसी को सही या गलत साबित करना बिल्कुल नहीं, बल्कि इस बहस के ताने बाने को खोलना है। हम ये समझने की कोशिश करेंगी कि दोनों फरीक अपने दलाइल कैसे बनाते हैं, वो किन बुनियादों पर खड़े हैं और ये बहस हमें मजहबी दलाइल की नौयत के बारे में क्या सिखाती है। बिल्कुल, तो आइए इसकी गहराई में उतरते हैं। बहस का आगाज एक बहुत ही बुनियादी और आप कह सकती हैं एक बराह रास्त चैलेंज से होता है। जी, एक बहुत ही डायरेक्ट चैलेंज है। पहले फरीक इम्तियाज साहब अपना पूरा मुकद्दमा एक सवाल पर खड़ा करते हैं। वो कहते हैं कि मुझे पूरे कुरान से सिर्फ एक आयत दिखा दें जिसमें ये लिखा हो कि कोई फौतशुदा इंसान रूहानी तौर पर भी यानी बरूज के तौर पर इस दुनिया में वापस आ सकता है। और ये एक बहुत होशियाराना हिकमत अमली है। वो इसे एक इस्तिलाह देते हैं अंडर कटिंग डिफीट। अंडर कटिंग डिफीट यानी जड़ से ही उखाड़ देना। बिल्कुल, उनका मौक़िफ़ ये है कि अगर कुरान में बरूज का कोई तसव्वुर ही मौजूद नहीं तो फिर बरूजी मोहम्मद या किसी भी नबी के बरूज का दावा खुद ब खुद खत्म हो जाता है। ये अहमदिया जमात के इस बुनियादी अकीदे पर बराह रास्त हमला है कि मिर्जा गुलाम अहमद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूहानी तसलसल थे। यहाँ एक बात वाज़ेह करना जरूरी है ना, बरूज का मतलब जिस्मानी तौर पर वापस आना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये एक रूहानी तसलसल का तसव्वुर है, जैसे एक ही किरदार या रूह एक नए रूप में जाहिर हो। ये इस्लामी इलाहियात में एक मुतनाज़िया तसव्वुर रहा है। जी। तो इस बराह रास्त चैलेंज के जवाब में दूसरे फरीक
अपल साहब ने क्या हिकमत अमली अपनाई? क्या उन्होंने कोई आयत पेश की? नहीं, यही तो दिलचस्प बात है। उन्होंने ब्रूस के अकीदे को साबित करने के लिए कोई बराह रास्त आयत पेश नहीं की। अच्छा, इसके बजाय उन्होंने अपनी दलील की इमारत बिल वास्ता यानी इनडायरेक्ट दलाइल पर खड़ी की। उन्होंने 3 मुख्तलिफ जावियों से जवाब दिया। वो क्या थे? पहला, उन्होंने सूरह अल हाक्का का हवाला दिया, जिसका मफहूम ये है कि अगर कोई शख्स अल्लाह पर झूठ बांधकर नबूवत का दावा करे तो अल्लाह उसे मोहलत नहीं देता और उसे हलाक कर देता है। अच्छा, उनकी दलील ये थी कि चूंकि मिर्जा साहब ने एक तवील जिंदगी पाई और उनका मिशन कामयाब हुआ, इसलिए वो सच्चे थे। यानी एक तरह से वो मतन से दलील लाने के बजाय नताइज को दलील बना रहे थे। वो कह रहे थे कि कामयाबी और लंबी उम्र खुद सच्चाई का सबूत है। ये तो दलील देने का एक बिल्कुल मुख्तलिफ फलसफा लगता है। बिल्कुल, और यहीं से इस बहस का असल दिलचस्प पहलू सामने आता है। एक फरीक कह रहा है मुझे किताब में लिखा हुआ दिखाओ, जबकि दूसरा फरीक कह रहा है दुनिया में उसके नताइज देखो। सही। उनकी दूसरी दलील सूरतुल बकरा की आयत 136 थी, जिसमें तमाम नबियों पर ईमान लाने का हुक्म है और कहा गया है कि उनमें फर्क ना करो। वो इससे ये नतीजा अखज़ कर रहे थे कि जब एक नबी आ जाए तो उस पर ईमान लाना फर्ज है। लेकिन ये दलील भी बरूज के तसव्वुर को तो बराह रास्त साबित नहीं करती। बिल्कुल नहीं। और उनका तीसरा नुक्ता एक जवाबी हमला था, एक तरह का काउंटर क्वेश्चन। अच्छा, वो क्या था? उन्होंने कहा कि अगर आपका ये मानना है कि कोई फौजशुदा शख्स दुनिया में वापस नहीं आ सकता, तो फिर मुसलमानों की अक्सरियत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिस्मानी वापसी का अकीदा कैसे रखती है? वो तो इससे भी बड़ा दावा ਵੀ है। ਕਰ ਲੋ ਨਾ, ਜੇ ਪਾਉਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਲੋ ਤੇ ਵਿੱਚ ਤਬਸਰੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਤਬਸਰਾ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਤਬਸਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜੇ। ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਭੜਿਓ। ਇਹ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਜੋ ਇਸਤਦਲਾਲ ਅੱਗੂ ਜੋ ਜਵਾਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਔਰਤ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਅਜੀਬ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਜੀਬ ਇਸਤਦਲਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਰਾਲਾ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਅੱਗੂ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਗੱਲ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜੇ ਵਕਫੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਬਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਬਸਰਾ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। प्ले करो, बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर भाई, मसला ये है कि बेचारे एआई की भी चीखें निकल गई थी जब हमने इनको ना निशान 85 पढ़ाया था। तो चले बाकी मैं अच्छा, बस यही कह रहा हूँ, सीकर भाई से पूछ ले। ठीक है। उन्होंने गेंद वापस मुखालिफ के कोर्ट में फेंक दी कि पहले अपने अकीदे की वजाहत करो। जी बिल्कुल। तो पहले ही मरहले में हमें दलाइल का एक बुनियादी तसादुम नजर आ गया। एक फरीक सिर्फ और सिर्फ कुरानी मतन को हतमी सबूत मान रहा है जी, जबकि दूसरा फरीक बानी की जिंदगी, जमात की कामयाबी और दूसरे इस्लामी अकायद से मुवाजना करके अपना केस बना रहा है। ये तसादुम सिर्फ उस एक नुक्ते तक महदूद नहीं रहा, मेरा ख्याल है। नहीं, ये पूरी बहस में बार बार सामने आया और यही वजह है कि ये बहस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी, क्योंकि दोनों फरीक सबूत के बिल्कुल मुख्तलिफ मेयारों पर बात कर रहे थे। एक के लिए जो चीज सबूत है, दूसरे के लिए वो सिरे से दलील ही नहीं। तो जब ब्रूस के अकीदे पर बराह रास्त कुरानी सबूत का मामला एक तातुल का शिकार हो गया, तो बहस का मैदान कुदरती तौर पर पेशगोइयों और अहादीस की तशरीह की तरफ मुंतकिल हो गया। जी, और ये हमें इस गुफ्तगू के दूसरे बड़े महाज पर ले आता है। और उसका मरकज क्या था? इस महाज का मरकज थी सही बुखारी की एक हदीस नंबर 4897, जो सूरज जुमा की एक आयत की तफसीर में बयान हुई है। अच्छा, इसका पस मंजर क्या है? देखें, पस मंजर ये है कि जब कुरान की आयत व आखिरीना मिनहुम लम्मा यलहकू बिहिम नाजिल हुई, यानी और उनमें से दूसरे लोगों के लिए भी जो अभी उनसे नहीं मिले, तो सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, ये दूसरे लोग कौन हैं? सही। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हो के कंधे पर हाथ रखकर फरमाया कि अगर ईमान सुरैया सितारे पर भी चला गया तो फारस के लोगों में से एक शख्स इसे वापस ले आएगा। यहाँ से मामला अचानक बहुत ज्यादा गर्म हो गया। दूसरे फरीक यानी एप्पल साहब ने बहस के दौरान ये दावा कर दिया कि जब ये आयत नाजिल हुई तो सहाबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि क्या आप दोबारा आएंगे? और ये एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, धमाकाखीज दावा था। ये कहना कि साहबा ने नबी के दोबारा आने का सवाल किया था, ये हदीस के मफहूम को एक बिल्कुल नई जहत देता है। जाहिर है। पहले फरीक इम्तियाज साहब ने फौरन इस पर गिरफ्त की और इसे हदीस पर बहतान करार दिया। उन्होंने मुतालबा किया कि हदीस के असल अरबी अल्फाज दिखाएं या कम अज कम किसी भी मुस्तनिद किताब से यही मफहूम साबित कर दें कि सवाल आपके दोबारा आने के बारे में था। एक मिनट, तो आप कह रहे हैं कि उन्होंने पहले दावा किया कि हदीस में नबी के दोबारा आने का जिक्र है, और फिर जब उनसे सबूत मांगा गया तो क्या हुआ? ये तो किसी भी बहस में एक बहुत बड़ा धचका हो सकता है। बिल्कुल। जब उन पर दबाव बढ़ा तो दूसरे फरीक ने वजाहत पेश की। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये बात अपने हाफजे की बुनियाद पर कही थी और मुमकिन है कि अल्फाज बिल्कुल वही ना हो। अच्छा, यानी ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਭਾਈ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ਰੀਫ ਸੁਣਾਈ ਏ,
ਕਿ ਸਾਹਬਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮਫਹੂਮ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ। ਐਸੀ ਹਦੀਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹ ਮਫਹੂਮ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਮਫਹੂਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਿਆ ਨਾ ਅਲਫਾਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਸਲਿਪ ਆਫ ਟੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰੰਗੇ ਹੱਥੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਮੁਰੱਬੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਕਾਂ ਗੋਭੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂ, ਇਹਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣੀ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਪਏ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਵੇਖ ਲਓ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ AI ਨੇ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਪਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਫਜ਼ੇ ਦੀ ਬਣਾ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟੇਵੇ ਨਾਲ। ਬਈ ਹਾਫਜ਼ੇ ਦੀ ਬਿਨਾ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਮਫਹੂਮ ਤੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਫਹੂਮ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਛੋੜ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਲੋਂ। ਇਹ ਸੁਣ ਲਓ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਭਾਈ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਸਿਰਫ ਹਰ ਮਰਜ਼ਈ ਮਰਬੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਆਇਤ ਤੇ ਹਦੀਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, हर मर्ज़ई दा यही कहना होता। साहबा कराम ने पूछा या रसूल अल्लाह वो कौन लोग हैं जिनमें आप दोबारा आएंगे, है कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं, क्योंकि वो तो मिर्जे गुलाम कादियानी नूं साबित करना चाहते ने, ये जानबूझ के दजल विच फैलांदे ने कि सवाल अपने कोलों पा दईए, सुनने वाला समझेगा अच्छा उन्हां कोल ये पुछया गया सी कि तुसीं दोबारा किन्ना लोकां च आना। ਇਹ ਤਾਂ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਆਣ ਦੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਜਲ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਲਿਪ ਆਫ ਟੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਨਾਲ ਪੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਭ ਝੂਠ ਸਫੇਦ। ਸਾਰੇ ਮਰਜ਼ਈ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਹਬਾ ਕਰਾਮ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਕੌਣ ਲੋग हैं जिनमें आप दोबारा आए। नहीं, वो दोबारा मिर्जा साहब की भी तहरीर पढ़ के सुनाई गई है। मिर्जा साहब ने भी यही लिखिया है। इस आयत दी तशरीह विच तफसीर विच मिर्जा साहब ने आप ये गल लिखी है। चलिए ये तो हमें डर गया है। ठीक है, इसको आगे सुनते हैं, थोड़ा आगे लेके चलते हैं, फिर सुनते हैं ताकि इसके ऊपर फिर बात की जाए। जी भाई कंटिन्यू करें। उन्होंने अपनी बात वापस ली। एक तरह से उन्होंने मौक़िफ़ तब्दील करते हुए अपने हाफ़ज़े की बुनियाद। ये तो किसी भी बहस में एक बहुत बड़ा धचका हो सकता है। बिल्कुल। जब उन पर दबाव बढ़ा तो दूसरे फरीक ने वजाहत पेश की। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये बात अपने हाफ़ज़े की बुनियाद पर कही थी और मुमकिन है कि अल्फाज बिल्कुल वही ना हो। अच्छा, यानी उन्होंने अपनी बात वापस ली। एक तरह से उन्होंने मौक़िफ़ तब्दील करते हुए कहा कि सवाल का असल मकसद ये जानना था कि वो दूसरे लोग कौन होंगे, ना कि ये कि क्या आप दोबारा आएंगे। इसके बाद उन्होंने अपनी दलील को इस नुक्ते पर मरकूज कर दिया कि हदीस में फारसी शख्स का जिक्र है और चूंकि मिर्जा गुलाम अहमद फारसी नस्ल थे, लिहाजा ये पेशगोई उन पर पूरी होती है। ये तो बहुत बड़ी तब्दीली है। एक तरफ नबी के दोबारा आने का सवाल और दूसरी तरफ उन दूसरे लोगों की शनाख्त का सवाल। पहले फरीक ने इस तब्दीली को कैसे देखा? लेकिन पहले फरीक के लिए ये अपनी बात से वाज़े तौर पर पीछे हटने के मुतरादिफ था। यानी एक इल्मी शिकस्त। जी, उन्होंने इसे इसी तरह पेश किया और इस बात पर जोर देते रहे कि दोबारा आने वाला मफहूम हदीस में कहीं भी मौजूद नहीं और ये अपनी तरफ से हदीस में इजाफा करने के बराबर है। इस वाक़े ने तो फिर बहस में एक दूसरे के जराये पर एतमाद को शदीद ठेस पहुंचाई होगी। यकीनन एक फरीक के लिए ये एक मामूली लफ्जी गलती की तस्हीह थी, जबकि दूसरे के लिए ये दलील की बुनियाद को ही बदल देने के मुतरादिफ था। तो हमने देखा कि पहले कुरानी मतन पर बात नहीं बनी, फिर हदीस की तशरीह पर एतमाद का बहरान पैदा हो गया। जब इल्मी और मतनी दलाइल पर इत्तेफाक ना हो सका तो बहस एक तीसरे और ज्यादा ठोस मैदान की तरफ चली गई, यानी जमीनी हकायक और नताइज। जी। जब मतन की तशरीह पर तात्तुल पैदा हो गया तो दूसरे फरीक ने एक बहुत अमली दलील पेश की। उनका कहना था कि अहमदिया जमात की आलमी कामयाबी, उसका मुनज़्ज़म निज़ाम और खास तौर पर उनकी खिलाफत का तसलसल ही उनकी सच्चाई का सबसे बड़ा सबूत है। और उन्होंने इस दलील को किस तरह पेश किया, मतलब क्या खास नुकात थे? उन्होंने इसे खिलाफत आला मिनहाजुन नबूवत का नाम दिया, यानी नबूवत के नक्शे कदम पर कायम खिलाफत। ये इस्तिलाह एक हदीस पर मबनी है। अच्छा। जिसमें पेशगोई की गई है कि इस्लामी तारीख के मुख्तलिफ अदवार के बाद नबूवत के तर्ज पर खिलाफत दोबारा कायम होगी। उनका दावा था कि उनकी जमात में जो खलीफा का निज़ाम है वो इसी पेशगोई का ज़हूर है और ये अल्लाह की मदद के बगैर मुमकिन नहीं। और उन्होंने अपने फलाही कामों का भी जिक्र किया था ना? जी बिल्कुल। उन्होंने दुनिया भर में अपने फलाही कामों, मसलन गजा में इंसानी इमदाद पहुंचाने को भी अपनी सच्चाई की दलील के तौर पर पेश किया। उनका मौक़िफ़ था कि ये सब किसी इंसानी कोशिश का नतीजा नहीं बल्कि खुदाई ताईद की अलामत है। ये एक मजबूत दलील लगती है क्योंकि ये नजरियाती बातों से हटकर अमली नताइज की बात कर रही है। तो पहले फरीक ने इस कामयाबी की दलील का क्या जवाब दिया? पहले फरीक ने इस दलील को तीन मुख्तलिफ बहुत मजबूत दलील दी है। दूसरे फरीक ने उन्हें आख्या असी नलके लवाए ने थर विच, असी अफ्रीका च की हस्पताल बनाए ने। एडी मजबूत दलील दी है कि लम्मा यलहकू बिहिम आखिरी ना लम्मा बिल्कुल सच्चाई का सबूत है। सच्चाई का सबूत है। मैं उस वक्त की सोच रहा सी
ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਪਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਲਕੇ ਲਵਾਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਾਈਕ ਖੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨਲਕੇ ਲਵਾਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਲੀਫਾ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖੂਹ ਕੱਢਣ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਤੇ ਨਲਕੇ ਪੁੱਤਰਾ ਲਵਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਖੂਹ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ। ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ ਕੋਲ ਦਲਾਇਲ ਸਦਾਕਤ ਇਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਲਕੇ ਲਵਾਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਾਦੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਹੱਲੇ ਇੱਕ ਮਰਜ਼ਾਈ ਪਿਆਂਦਾ ਇਹ ਦਜਾਲ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਟੂਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਦਾਕਤ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਟਰ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਵਾਟਰ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਟੋਨੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ احمدی مسلمانوں سے صبر کی درخواست ہے۔ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੱਚਾ ਫਿਰਕਾ ਸਿੱਖ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਤਫਰੀਕ ਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹਰ ਵਕਤ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ। ਹੁਣ ਚਲੇ ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਖਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ, हर वक्त खाना। चलो जी प्ले करो। की बातों से हटकर अमली नताइज की बात कर रही है, तो पहले फरीक ने इस कामयाबी की दलील का क्या जवाब दिया? पहले फरीक ने इस दलील को 3 मुख्तलिफ जावियों से रद्द किया। पहला और सबसे बुनियादी एतराज ये था कि उन्होंने कहा कि आपकी ये खिलाफत दरअसल उस खिलाफत के सिलसिले का तसलसल नहीं जिसकी पेशगोई की गई थी, बल्कि उसने इस सिलसिले को मुनक़ता कर दिया है। उनके मुताबिक ये एक नया सिलसिला है जिसने उम्मत के पुराने सिलसिले को खत्म कर दिया, लिहाजा ये पेशगोई का पूरा होना नहीं बल्कि उसका खात्मा है। यानी एक फरीक जिसे खुदाई निजाम का तसलसल कह रहा है, दूसरा उसे असल निजाम से इनहराफ करार दे रहा है। ये तो तारीफ का ही जगह है। दूसरा एतराज क्या था? दूसरा एतराज ज्यादा मुतनाज़िर था। पहले फरीक ने जमात के एक ओहदेदार के एक मुबैना बयान का हवाला दिया जो गजा और यहूदियों के बारे में था। अच्छा। उनका इल्जाम था कि एक तरफ आप गजा में इमदाद का दावा करते हैं और दूसरी तरफ आपके जिम्मेदारान ऐसे बयानात देते हैं जो उनके बकौल यहूदियों के हक में और फलस्तीनियों के खिलाफ हैं। वो इस तजाद को सामने लाकर उनके फिलाही कामों के पीछे की नीयत पर सवाल उठा रहे थे। ये तो एक संगीन इल्जाम है। और तीसरा जवाबी नुक्ता क्या था? तीसरा नुक्ता तारीखी कामयाबी के दावे पर ही एक सवाल था। पहले फरीक ने पूछा कि मिर्जा साहब का बुनियादी मिशन हिंदुस्तान में ईसाइयत के फैलाव को रोकना था। इस जमाने में लाखों हिंदुस्तानी ईसाई हो रहे थे, सही। उन्होंने सवाल किया कि इन लाखों लोगों में से मिर्जा साहब कितने लोगों को वापस इस्लाम में लाए। उन्होंने ये दावा भी किया कि मिर्जा साहब के अपने खानदान के कुछ करीबी लोग ईसाई हो गए थे। तो एक तरफ आलमी कामयाबी का दावा है और दूसरी तरफ ये इल्जाम कि आप अपने बुनियादी मकसद में अपने ही इलाके में नाकाम रहे। ये एक बहुत बड़ा तजाद है जिसका उन्होंने जवाब मांगा। बिल्कुल। तो खुलासा ये है कि इस सारी बहस का महवर एक जगह आके रुक जाता है। एक फरीक का मुतालबा है कि बुनियादी अकायद के लिए सिर्फ और सिर्फ कुरान से वाज़ेह, सरी और बराह रास्त सबूत दिया जाए। अगर मत में नहीं है तो वो उसे नहीं मानेंगे। बिल्कुल। जबकि दूसरा फरीक अपनी दलील की इमारत कई सुतूनों पर खड़ी करता है। वो कुरान की तशरीह भी करते हैं, हदीस का हवाला भी देते हैं, अपने बानी की जिंदगी और तहरीरों से भी इस्तिदलाल करते हैं, और सबसे बढ़कर अपनी जमात की अमली कामयाबी, तंजीम और निजाम को अपनी सच्चाई की सबसे बड़ी दलील के तौर पर पेश करते हैं। जी। यहाँ दलाइल देने के तरीकाकार में ही जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ का मौक़िफ़ ज़ाहिरी अल्फाज पर सख्ती से कायम रहने वाला है, जिसे आप टेक्सचुअलिज्म कह सकते हैं। सही। दूसरी तरफ का मौक़िफ़ मुख्तलिफ हवालों को जोड़कर एक मजमूई तस्वीर बनाने वाला है, जिसे सिंथेटिक अप्रोच कहा जा सकता है। बिल्कुल। और मसला यह है कि दोनों फरीक एक दूसरे के सबूत के मेयार दरअसल 1 मिनट का रह गया वो। ठीक, चलो सुना ठीक है। को ही कबूल नहीं कर रहे, जिसकी वजह से गुफ्तगू आगे बढ़ने के बजाय दायरों में घूमती रहती है। यही इस मुबाहिसे का सबसे बड़ा सबक है ना? यकीनन ये सिर्फ 2 अकीदे का टकराव नहीं बल्कि ये 2 मुख्तलिफ इल्मी मिनहज या मेथोडोलॉजीज का तसादुम है। जब तक दोनों फरीक इस बात पर मुत्तफिक ना हो कि सबूत किसे कहते हैं तब तक कोई भी बहस नतीजा खेज नहीं हो सकती। वो सिर्फ एक दूसरे के सामने अपने अपने मौक़िफ़ दोहराते रहेंगे। जी। तो आखिर में हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाती हैं जिस पर वो गौर कर सकते हैं। सवाल ये है कि जब किसी मजहबी बहस में फरीकैन सबूत और दलील के बुनियादी यार पर ही मुतफिक ना हो तो क्या ऐसी गुफ्तगू का कोई फायदा है? और ये सूरत हाल मजहबी सच्चाई को परखने के अमल के बारे में क्या जाहिर करती है, जब एक ही किताब और एक ही हदीस को पढ़ने वाले लोग इससे बिल्कुल मुख्तलिफ बल्कि मुतजाद नताइज अख्ज़ कर रहे हों। एक आम इंसान इस सूरत हाल में सच्चाई तक कैसे पहुंचे? बहुत जबरदस्त तबसरा है, इन्ना एक्यूरेट तबसरा है कि कोई बंदा भी इन्ना लफ्ज़ां नाल तबसरा नहीं कर सकता। यानी ਉਹ ਇਹ ਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੰਦਮ, ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਚਨਾ। ਇਮਤਿਆਜ਼ ਭਾਈ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਪਲ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਚਾਵਲ ਸਫੇਦ ਨੇ, ਇਸ ਵਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਗੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ।
ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖੀਦਾ ਕਈ ਇੱਥੇ ਮਾਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਿੱਲਾ ਗੁੱਡ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਕਮਾਦ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਉੱਥੇ ਕਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੋ। ਇਹੋ ਹੀ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਵਹਦਹੁ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਗੁਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮੌਕਫ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਦਰ ਕਿੱਲਾ ਖੇਡਦੇ ਹੋ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਵਾਲ ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਦ ਨੂੰ ਕਿ ਰਜਾਲੁ ਦੁਨੀਆ ਕੌਣ ਹੈ, ਰਜਾਲੁਲ ਆਖਿਰਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਲਾਇਸਾ ਮੁਹੰਮਦੁਨ ਅਬਾ ਹਾदिम मिन रजालिद दुनिया वलाकिन हुवा अब्बु लिरजालिल आखिरा। ये रजालु दुनिया कौन है, रजालुल आखिरा कौन है? कितना को मैंने सारा सफा पढ़ छड़िया, 2 सफे पढ़ छड़े, एक गलती का जल। इस सवाल का जवाब उत्थे आई नहीं, क्योंकि इस गल नूं एड्रेस ही दोबारा मिर्जा साहब ने किया है। सवाल नंबर 6 हकीकतुल वही खोल के पढ़ लो। मूँह मंगया इनाम मैं रखिया उस बंदे वास्ते जेड़ा उस सवाल नूं पढ़ के ते ओदे जवाब नूं अपने लफ्जां च बयान कर दे। सवाल नूं भी ते जवाब नूं भी कि मिर्जा साहब नूं सवाल की कीता गया, जवाब की दिता गया है। जो मिर्जा साहब ने कीता ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ पे ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਫੀਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਫਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਾਫਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਪਟਿਆਲਵੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਦਾਵਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਤਜ਼ਾਦ ਏ, ਤਨਾਕੁਜ਼ ਏ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸਾਇਲ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਸਾਇਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹਕੀਕਤੁਲ ਵਹੀ 'ਚ ਕਿ ਇਹ ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਤਨਾਕਜ਼ ਏ। ਜਾਓ ਪੜ੍ਹ ਜੋ ਸਾਰਾ ਜਵਾਬ। ਜੇ ਇਸ ਤਨਾਕਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਵਹਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਨ ਕੱਢ ਕੇ ਵਹਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤਨਾਕਜ਼ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੋਲ 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 ਇਹੋ ਹਿਸਾਬ। ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਦਾ ਜ਼ਲ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਇਨਾਮ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਦਾ ਜ਼ਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦੇ। बयान ही नहीं कर सकता। अब इस सारी तहरीर से मतलब मेरा ये है, 11 सफ़े लिख के ना 12वें सफ़े का आखिरी पैरा है, 11 सफ़े में जेडे लिखे ने ना, इस सारी तहरीर से मतलब मेरा ये है, की मतलब है कि जाहिल मुखालिफ मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये शख्स नबूवत और रसालत का दावा करता है। मेरा ऐसा कोई दावा नहीं। नाल ही अगली लाइन च लिखा है, हाँ जिस तौर से वो समझता उस तौर से ना मैं नबी हूं ना रसूल हूं, पर जिस तौर से मैंने अभी बयान किया इस तौर से मैं नबी भी हूं रसूल भी हूं। बंदे नूं तो यही नहीं याद रहिंदा मैं हुण आया किहड़े पिंडों ते जाना किहड़े पिंड, राह मेरा किहड़ा है। बई हुणे ते तुसां आखिया है कि जाहिल मुखालिफ तुहाडे ते इल्जाम पे लांदे तुहाडा नबूवत दा दावा है। हुण तुसीं आंदे हो इस तरीके नाल मैं नबी रसूल आए हां। अगर तुसीं आया हो ते फिर जे ओ तुहानूं मदईए नबूवत मदईए रसालत कहंदे ने ते इहदे च की गलती करदे ने? ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਗਲਤੀ ਦਾ ਜ਼ਾਲਾ ਮੈਂ AI ਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਮੈਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਹੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਅਖਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਜ਼ਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜਾਂ ਗੱਲ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ इसका जवाब हाँ में भी है और ना में भी। लाओ ये भी कहते हैं ना। हाँ जिस आयत से उन्होंने खत्म नबूवत की है उसी आयत से उन्होंने नबूवत जारी कर दी। एक मिनट अवैस साहब जेड़े बंदे को AI दी सहूलत मुयसर है म्यूट करना रा चौहान साहब म्यूट करना है जेड़ा हकीकतुल वही दा 165 या 67 सफ़े दे उत्ते सवाल नंबर 6 वे ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਤੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ PDF ਕੱਟ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਜੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। जिल्द बताएं रूहानी खजान की जिल्द बताना जरा। 22वीं जिल्द में हकीकतुल वही अकेली किताब है, उसका सफ़ा नंबर 165 या 167 इस तरह का होगा। वहां पर सवाल 1 2 3 4 5 करके लिखे हुए ना। सवाल 6 सवाल नंबर 6 पे आपने जाना है। 167 है 167 पेज पे लिखा हुआ। यार शेरफ का भाई आप डालोगे ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਸਹੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖਿਲਾਫਤ ਅਲ ਮਨਾਜੇ ਨਬੂਵਤ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ। मौका देना प्लीज आप एक मिनट मौका देना। शेरफ खुदा भाई आप हो यहाँ पे यार वो डालोगे इधर आप ये
ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ठीक है, वो कर रहा है, वो कर रहे हैं। ये रेफरेंस जो बताया वो ये जिल्द 22 है, पेज नंबर 165 है और सवाल नंबर 6 है यार, इसको डाल के फिर आप आइए। जी तारिक भाई आप करें बात कंटिन्यू। तारिक भाई पेज नंबर ये कह रहा था कि अभी जो आपने पहले सुनाई थी ना गुफ्तगू, उसमें उसने सही बात की है कि ये जो कहते हैं ना कि हमारी खिलाफत अला मिनहाज नबूवत है, ये दुरुस्त बात नहीं है, क्योंकि ये नया सिस्टम एक इन्होंने बनाया है, ये कोई कॉन्टिन्यूशन नहीं है पहले की। ये बात बिल्कुल सही उसने निकाली उसमें से, क्योंकि एक नया सिस्टम बनाया है, मिनहाज नबूवत पे तो नहीं है ना मिर्जा साहब नबी थे। पहली बात है, इस बात का मौजू से क्या लेना देना? वो बात तो कह रहे थे बुरूज की कि क्या कोई फौतशुदा बंदा वो बुरूज की शक्ल में दोबारा आ सकता, इसका खिलाफत से कोई लेना देना है? नलके लगाने को मतलब है, हाँ अस्पताल बनाने को मतलब है? बिल्कुल। जाहिल अल्लाह माफ करे इस तरह की कौम। चलो शुक्र है, ऐ तो बहुत अच्छी गल है। AI जेड़ी है ना, ये इंशाल्लाह उम्मीद है मावन और मददगार साबित होएगी। एक गलती का अजाला भी ਇਹਦੇ पाओ, सवाल नंबर 6 भी पाओ ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਸ ਲੋ। ਤੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ PDF ਕਰਕੇ ਪਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਰ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੀ ਆਖਿਆ ਦੀ ਕਿ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹਵਾਲੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿਸਟਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ। ਮੌਲਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਲਾਹੌਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਸ਼ੀਰੁद्दीन महमूद अहमद ਦੇ ਮਰੀਦ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਗਲਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਜ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਝੁਟਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਾਹਿਦ ਕੌਮ ਹੈ ਇਹ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਨੇਮਤਾਂ ਇਹ ਘੱਲ ਕੇ ਹੁਜਤ ਤਮਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵਮਾ ਰੱਬੁਕ ਬਿਜ਼ੱਲਾਮਿਨ ਲਿਲ ਅਬੀਦ, ਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਾਲਮੋ ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਹੈ या अल्लाह पाक जब मिर्जा साहब झूठ बोलिया तो मिर्जा साहब जाना तो तू जान ना 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 ना। अल्लाह पाक ए तुहाडे अगे रखेगा चीज़ां, जिस तरह अल्लाह ताला ने आख्या ना हथ बोलणगे, पैर बोलणगे, अखां बोलणगियां, जबान बोलेगी, ए कन गवाही देणगे, ते ओ बंदा आखेगा तुसी क्यों बोलदे हो, तुसां मेरे नाल ही दोज़ख सड़ना है। ओ कहणगे असीं नहीं बोल रहे, सानू रब बुलवा रहा। ए जड़ियां मशीनां, ए जड़ियां गवाहियां, ए जड़ियां वॉइसिस ने, ਇਹ ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਣਗੀਆਂ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਪਾਈ ਗਈ ਹਕੀਕਤ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਚਟਲਾਓ, ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਵਰਨਾ ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਅੱਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੀਕਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਮੁਕੱਦਮ ਜਾਣਿਆ, ਤੇ ਆਖਰਤ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਹਾਨ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਿਸ ਡਿੱਠਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਬੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਲੋ ਵੱਢ ਲੋ, ਇਹ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ AI ਕੀ ਬੁਲਾਇਆ ਕੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਾ ਤਾਲ ਮਨਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਤਬਸਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਅਗਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਜਾਂ ਬਸ਼ੀਰੁद्दीन महमूद अहमद ਦੀਆਂ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ ਦੇ, ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਕੀ ਆਖੇ ਦੀ ਕਿ ਮੁਤਜ਼ਾਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤਜ਼ਾਦਾਤ ਦਾ ਮਜਮੂਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਇਬਾਰਤ ਹੈ ਇੰਜੀਲ ਦੀ, ਉਸੇ ਇਬਾਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੋ ਨਤੀਜੇ ਅਖਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਇਬਾਰਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਇੰਜੀਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਜੀਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ नेक उस्ताद, तो ईसा अलैहिस्सलाम ने आख्या मुझे नेक क्यों बोलता है, मुझे क्यों कहता है नेक, नेक तो सिर्फ एक ही है, वो है खुदा। ठीक, मिर्जा साहब ने तू दो नतीजे कढ़े ने इस इबारत तो। एक ये नतीजा कढ़िया कि किन्ने हलीम ते बुरदबार ते मतवाजे इंसान सन, और औलिया अल्लाह का भी यह शेवा रहिंदा है कि वो तकबर नहीं करते बल्कि वो इज्जो इनकसारी इख्तियार करते हैं। दूजा इसे बारे चो यह नतीजा इख्तियार किया है, यह नतीजा कढ़िया कि
ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੇਕ ਆਖਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਪਨਾਹ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਤੀਜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਤਹਿਰੀਰ ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਨੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਲਿਖੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ AI 'ਚ ਪਾਓ ਤੇ ਕੀ ਨਿਕਲੇਦਾ? ਉਹ ਹਸਨ ਨਸਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਉਹ ਸੂਅਰ ਦਾ ਕੀਮਾ, ਉਹ ਗੋਸ਼ਤ ਪਾਓ ਤੇ ਸੂਅਰ ਦਾ ਹੀ ਕੀਮਾ ਨਿਕਲੇਦਾ ਨਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣਾ ਉਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਨਾ। ਇਹ ਪਾਓ ਹੰਦੋਏ ਵਾਲੇ ਬਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ AI ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਗੇਮ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਗੀ AI। ਵਾਟਰ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੂੰ ਇਸ ਦੋਵੇਂ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਨੂੰ AI 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾ ਕੇ ਪੁੱਛ। ਮੈਂ 2-4 ਮਿੰਟ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੁਣਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਵੈਸ ਭਾਈ ਇਹ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਵਾਮ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਆਪੇ ਸਮਝ ਲੈਣਗੇ ਬਈ ਕੀ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਬਸਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹ ਤਬਸਰਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਮਰਜ਼ਈਆ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਨਾ ही नहीं कि भाई रिजल्ट ही सामने आ जाता है। नहीं देखिए, बात पहली बात ये कि अल्लाह माफ़ी कोई दुकानदारी तो है नहीं यार, हम कौन सा यहाँ पे कोई दुकानदारी लगा के बैठे हुए हैं। और बात ये है कि अगर कोई इल्जाम है ना, वो इल्जाम है ना, वही बताना बयान करने लगा। बाकी ये है कि हाँ, अवैस को किधर साइड पे करके समझाना पैना है, मेरी गल नहीं समझ ले। एक न्यूट्रल जजमेंट जो है वो एक अच्छा लगता है कि आप न्यूट्रल जजमेंट सुने। देखें अभी आप एक हिसाब लगा लेना कि इस कदर नफरत भर दी गई है कि वो भी आई हैं, वो उनके सामने किताबें लगी हुई हैं, वो कह रही हैं कि नहीं मैं ये मानती, मतलब मुझसे ये बात ही ना करो। वो कहती मैं बात ही नहीं करना चाहती इस पे, बस मुझे ये बताओ कि ये तुम लोगों ने कलमे क्यों मिटाना शुरू कर दिए, ये बताओ कि तुम लोग ये क्यों कर रहे हो, ये बताओ कि ये क्यों कर रहे हो। भाई आप जब इल्मी बात करेंगे तो इल्मी बात ही होगी ना, आप उस पर आप वो मतलब क्या 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 कहा जाए, बस इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। भाई सबसे ज्यादा अजीब बात यह है कि उनसे जब एक बात पूछी गई, जैसे कलमे वाली पूछी गई बात या इसमें अहमद वाली बात पूछी गई, उन्होंने कहा नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। लेकिन जब हवाले सामने आए तो उनकी बिल्कुल टून ही चेंज हो गई है ना। उन्होंने फिर कहा कि जी ये छोड़े, ये मौलवियों ने लिखी हुई हैं, आप दजल कर रहे हैं, आप फलां कर रहे हैं। और उनका नुक्ता जो है वही पैड़ा हुआ, दिमाग वही पैड़ा हुआ, मैं वीडियो चलाऊंगी जब मिलेगी। मतलब ये हालात है, पता कुछ भी नहीं है। लेकिन मिर्जा साहब की तहरीर सामने आने के बाद उनका रवैया चेंज हो जाता है। हद हो गई है यार। जी शेर खुदा भाई कितना टाइम लगना है अभी आपको? और यार इट्स आई थिंक इट्स नॉट मे बी मोर देन 5 मिनट यार वैस भाई ये तरीका थोड़ा मुझे भी समझाओ कैसे करते हैं, पर्सनल में समझाओ। आपको कॉल में समझा देता हूँ मैं। यूट्यूब पे जितनी वीडियो अपलोड है सबकी नतीजा निकाल के लगाता हूँ यार मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं ज़िया भाई मैं चाहता हूँ कि आप एड्रेस करें इसको। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट फ्रेंड फ्रॉम जमात अहमदिया। कि तुम्हारे आपस के कुफर के फतवों पर तो तुम लोगों ने कभी बात नहीं, आपस में नफरत भरी है, इसलिए क्वेश्चन मार्क है। आप ज़िया भाई इसको एड्रेस करना चाहेंगे? मौजूद नहीं है। सीकर भाई आप हैं यहाँ पर? जी मैं इधर ही हूँ। अब मैंने कल एक मिसाल दी थी, मैं वही मिसाल ही इनको दे देता हूँ। ये जो कहते हैं ना आपस में फतवे और आपस में इख्तलाफात, वो मैंने कल बताया था कि भाई एक आदमी के 3 बेटे हैं और एक बेटा जो है वो लोगों को ये कहता फिरता है कि ये जो हमारा वालिद है ना, असल में हमारा वालिद नहीं है, इसने अभी फ्रॉड लगाया हुआ है हमारे साथ, ये हमारा हकीकी वालिद है ही नहीं। लोग उसको कहते हैं कि उसके बारे में कहते हैं तो है ही हरामदा, ये अपने प्यो तो ही मुकरिया होया। उसी बाप के दूसरे 2 बेटे जो उस लड़के के भाई हैं, वो लोगों को जाके कहते हैं कि यार देखो मेरा जो भाई है ना, वो जो नहर के पास वाली ज़मीन है वो खुद रखना चाहता है और मुझे दूर वाली देता है जहाँ पानी कम आता है। दूसरा भाई जाके कहता है यार ये देखें ये नीचे वाला पोर्शन जो घर का है ये मेरा भाई खुद रखना चाहता है, ऊपर वाला मुझे देता है, जो ज्यादती करता है। अब उस एक भाई जो कहता है हमारा ये बाप ही नहीं है, उसका भी बाकी दोनों भाइयों से इख्तलाफ है। दूसरे कहते हैं यार ये बकवास क्या करते हो तुम, वो कहता नहीं ये साडा प्यो ही नहीं है। और दूसरे 2 भाई जो हैं वो आपस में भी झगड़ते हैं ज़मीन के मामले पर। अब जो बाहर के सुनने वाले लोग हैं वो एक को कहते हैं तो है ही हरामदा
और दूसरों को कहते हैं कि यार आप मिल बैठ के खानदानी लोगों को इकट्ठा करके आप अपना मामला सुलझा लें। अब जिसको हरामदा लोग कहते हैं वो जाके शिकायत लगाता फिरता है कि देखो मेरे भाई भी तो आपस में लड़ रहे हैं ना, दूसरे वो भी तो इख्तलाफ कर रहे हैं ना, उनको कोई नहीं हरामदा कहता, मुझे लोग हरामदा कहते हैं। भाई मेरा क्या गुनाह है, मैंने इख्तलाफ कर लिया तो मैं हरामदा हो गया, वो भी तो इख्तलाफ करते, फिर उनको क्यों हरामदा नहीं कहते? तो लोग यही कहते हैं ना कि तू इख्तलाफ ही हरामदे वाला कीता ना, तू अपने प्यो तो ही मुकर गया। उनका झगड़ा ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने बाप का इनकार किया हो, तूने तो अपने बाप का इनकार कर दिया है, और जो अपने बाप के बारे में इनकार करे उसको लोग मादरत मैं सुन ली भाई, मैं मादरत सुन ली ताड़ी, मैं खत्म करने लगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए कोई नहीं ये महज़ब हरामदे वाली मिसाल मैं इनको नहीं दे रहा, मैं इनको नहीं दे रहा मेरे भाई, मैं सिर्फ बात समझाने के लिए, ये इनकी तरफ नहीं है। मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर इख्तलाफ एक जैसा ना हो तब ही राय एक से मुख्तलिफ होती है। इनका इख्तलाफ जो है, इन्होंने मुसलमानों से इख्तलाफ किया है मुसलमानों के बुनियादी अकायद पे, जिन पर दीन इस्लाम की बुनियाद है। जैसा कि अल्लाह ताला की ज़ात, उसमें इन्होंने इख्तलाफ किया, मुसलमानों में तो कोई इख्तलाफ नहीं है। कोई मुसलमान नहीं कहता कि अल्लाह ताला के जो है तेंदुए की जैसी शक्ल है और उसके हाथ पांव तूलो अर्ज में फैले हुए हैं। कोई मुसलमान नहीं कहता कि क़यामत जो है, रोज़े क़यामत जो है ये एक अहम ख्याली बात है, ठीक है, कोई जन्नत दोज़ख नहीं है। कोई मुसलमान जो है वो ये नहीं कहता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी नहीं है, उनके बाद भी नबूवत जारी है। तो इन्होंने बुनियादी जो दीन की बुनियाद है, जिन अकायद पे, उनमें इख्तलाफ किया है। मुसलमान जो आपस में करते हैं उनके इस तरह के इख्तलाफ हैं, भाई नमाज में हाथ पेट पे बांधना है या सीने पे बांधना है जी, तलाक वो एक जगह दी जाए 3 बार तो वो तीनों हो जाती हैं, या 3 अलग अलग जगहों पे दे तब 3 होती हैं। मुसलमानों के इख्तलाफ है इस तरह के। तो इन्होंने चूंकि दीन के जो बुनियादी अकायद हैं उनको बिगाड़ा है, उनसे इख्तलाफ किया है, इसलिए इनको दायरा इस्लाम से खारिज करार दिया है। इनका इख्तलाफ वो है जो इंसान को, मुसलमान को इस्लाम से निकाल देता है। मुसलमानों के आपसी इख्तलाफात ऐसे नहीं हैं जिससे वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएं, बस यही वजह है। बाकी ये लगे रहे जी, उनके भी इख्तलाफ हैं, वो भी फतवे देते हैं। जहां तक कुफर के फतवे की बात है तो वो देखें, मुसलमानों में से भी अगर कोई बंदा, कोई इंडिविजुअल कोई ऐसी बात, कोई ऐसा अकीदा जाहिर करे जिस पर कुफर का फतवा लगता हो, ये तो हमारी सच्चाई की, मुसलमानों की सच्चाई की दलील है कि भाई मर्जियो, आपके साथ हमने कोई जो है वो जानबदारी का मुजाहरा नहीं किया, बल्कि मुस्लिम उलमा का ये मनसब है कि अगर कोई इंडिविजुअल, कोई बंदा जाती तौर पे अगर कोई ऐसा अकीदा, ऐसी बात का इजहार करे जो दायरा इस्लाम से खारिज कर देने वाली हो, तो वो उस पर भी कुफर का फतवा लगा देते हैं, सिर्फ जमात अहमदिया नहीं। और अगर कोई जमात पूरी की पूरी ही ऐसे अकायद या ऐसे ख्यालात का इजहार करे जो दायरा इस्लाम से खारिज कर देने वाले हों, तो उलमा उनको भी दायरा इस्लाम से खारिज करार दे देंगे। ये मुसलमानों के आपस में किसी इंडिविजुअल पर कुफर का फतवा देना, ये हमारी इस सदाकत की दलील है कि हमने आपको गलत काफिर करार नहीं दिया। उलमा के सामने अपना बंदा भी आ जाए, जिनको हालांकि आप भी कोई बिगाने तो नहीं थे, उम्मत मुसलमान का हिस्सा थे मिर्जा गुलाम कादियानी को मानने से पहले, तो जिस तरह वो इंडिविजुअल एक ऐसे अकीदे का इजहार करता है जो इस्लाम से खारिज कर देने वाला हो, उसको भी खारिज करार दे दिया जाता है। आपकी जमात ने ऐसे अकायद का इजहार किया तो आपकी जमात को खारिज करार दे दिया, इसमें तो कोई जानबदारी का मुजाहरा नहीं किया गया। जी शुक्रिया। जिया भाई, एक तहरीर है, मैं ये मर्ज़ई को नहीं बताऊंगा तहरीर किसकी है, अब पता नहीं ये उसने तारीफ की है या गाली दी है, लेकिन तहरीर ये है कि ये मुसलमान आपस में कुत्तों की तरह लड़ते हैं, लेकिन कुफर के सामने सब इकट्ठे हो जाते हैं। हाँ जी, जी दोबारा बताइए जरा, क्या कहा है? कहते हैं कि ये मुसलमान आपस में कुत्तों की तरह लड़ते हैं, लेकिन कुफर के सामने सब इकट्ठे हो जाते हैं। हाँ, तो भाई कुफर दे सामने तो इकट्ठे होना चाहिए, आपस दे विच तो इख्तलाफ होंदे रहंदे, लेकिन ज़बान ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਠੀਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। मतलब देखो ना तुसी पता नहीं तारीफ कीती है, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਰੀफ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, लेकिन तुसी गल देख लो कि भाई कुत्तों की तरह आपस में लड़ते हैं, लेकिन कुफर के सामने सब इकट्ठे हो जाते हैं। हाँ, तो बस फिर उन्होंने आप ही फैसला कर देता ना, मुसलमान कौन निज़ार बैंक है और यूबीएल वाला बैंक है ही नहीं। हाँ, तो इसमें यूबीएल बैंक भी है ना, जीना स्टाइल में
दोनों अटैच करें इसके साथ, ये भी माइनस